and a big round of applause for all of you to be here and waiting for us. So it gives us a. So first things we'll just want to introduce. We were working on a book for the past 1.5-2 years, and so we found कि हम लोग जब ethics prepare कर रहे थे for UPSC, ethics के लिए we also referred and a lot of toppers also referred to a lot of different sources. तो हमें एक कोई one stop source नहीं मिल पा रहा था. What we did is कि we did our own research, read multiple books, and we tried to compile what is most relevant for UPSC in terms of ethics. So we worked on a book called the Manual on Ethics, Integrity and Aptitude, and we'll leave a copy here at the center. You guys can go through and let us know कि how it can help you. I would like to know कि आप लोग कितना how much into preparation है? Have you done your GS once? Are you just beginners? Beginners. You are just beginners. Okay. So in that sense you will get to know धीरे धीरे कि ethics के लिए थोड़ा सा sources कम है, multiple sources refer करने पड़ते हैं. तो in that sense this book should be able to fill that gap for most of the aspirants. That is the first thing that we wanted to come around and tell you. इसके अलावा we would like to keep this session open and interactive. तो आप लोगों के अगर कुछ queries हो, questions हो, prep को related, ethics को related या anything in general, so we'd like to answer that. You can just raise your hand. We'll take your questions. तो instead of हम कुछ बोले और हम लोग इतना sessions आप सुन भी चुके होंगे, हमें सुन चुके होंगे कि और toppers को सुन चुके होंगे, तो कोई मतलब नहीं हम वही चीज़ यहाँ पे बोलें. तो आप हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, what do you want to clarify? You might have some questions in your mind. आप वो बताइए, we'll try to address that. बिगनिंग है, कुछ आइडिया नहीं है, और अभी सिर्फ हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कैसे कोप अप करें सब चीज़ों के साथ? To start with, Kanishka, right? Kanishka's question is that how to start the preparation. She is telling that we get confused in the beginning. So Kanishka, let me assure you, we have been there. आप जिस सिचुएशन में हो, मैं भी वहीं पे था. She was there, and rest all of us who have cleared. I get it. एक मिनट. We are trying if we can get some backup, है ना? ऐसे ही बोल लो नहीं तो. हाँ, ऐसे अभी सुनने में आ रहा है. मेरा हिंदी थोड़ा जेल लो आप लोग. तो I was just telling कि her question was how to start. We are confused. We are just into preparation. So how to go about the preparation, how to start and how to move ahead. So I was just assuring her. तो हम भी वहीं पे थे. We were also right at exact point where you were. तो how to begin? पहले हम भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था. सभी हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री NCERT से ही स्टार्ट करते. तो आपको बिगिनिंग में ना तो यू जस्ट आई वुड जस्ट से कि आप सिर्फ पढ़ो. फर्स्ट रीडिंग जो है, अब जस्ट रीड. जस्ट डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग और डोंट पुश योर सेल्फ कि यार ये समझ में नहीं आया तो ये वॉट एवर यू आर रीडिंग यू जस्ट रीड थ्रू इट. पर्टिकुलरली द NCERTs. सो NCERTs एक बार जस्ट कहा मतलब इट शुड बी रेड लाइक अ स्टोरी बुक. पर्टिकुलर द हिस्ट्री पार्ट आप एक कहानी जैसे आप पढ़ लो एक बार. उसके बाद आपको एक कुछ आइडिया आएगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री में वो भी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री एक आइडिया आ जाएगा उसके बाद. सो एंड यू डू दिस विथ ऑल द NCERTs. वंस यू जस्ट रीड थ्रू इट, उसके बाद देन यू शुड स्टार्ट करंट अफेयर्स विथ योर प्रिपरेशन. करंट अफेयर्स आप डेली न्यूज़पेपर है साथ में ही स्टार्ट करना है. वो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बिगिनिंग में. आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. 3 घंटे लगेगा, 4 घंटा लगेगा. डेली वन मतलब न्यूज़पेपर एक बार ख़त्म करने के लिए 4 घंटा लगता है बिगिनिंग में. इट गेट्स वेरी डिमोटिवेटिंग ऑल्सो समटाइम्स कि भाई इफ़ वी आर डूइंग लाइक दिस हाउ कैन वी गो अहेड एंड ऑल. बट ट्रस्ट मी आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल गेट इन टू द फ्लो. एक बार आप NCERTs पढ़ लिया और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो आती है वो एक बार आपने जस्ट इफ़ यू गो थ्रू एंड इफ़ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स विद दैट, आफ्टर वन रीडिंग you will come to a position where you will get a confidence कि ठीक है, now I know what I am reading. So it takes at least 2-3 months to know what you are reading. कि आप किस ये एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ रहे हो एंड क्यों पढ़ रहे हो, ये समझने में ही कुछ समय लगेगा.
तो दिस इज बिगिनिंग फेज में that time. Be patient with your preparation. Don't be कि अब मुझे एक साथ में इतना कुछ कवर करना है, how will I do it? Try to be patient with yourself. आराम आराम से करो. सिलेबस टफ नहीं है, सिलेबस वास्ट है. तो कोई चीज़ अगर वास्ट होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है. तो इट विल टेक योर टाइम, बट होल्ड योर पेशेंस एंड धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर्स के साथ में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो थोड़ा थोड़ा होल्ड आता जाएगा. आई वुड से कि 6 महीने बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव आएगा कि अच्छा चलो अभी कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपनी शुरू हुई है, तो तब यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. अभी इट्स टू अर्ली. बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग. आप क्लासेस जैसे क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे होंगे, क्लासेस के साथ साथ पढ़िएगा. एक बार उसके साथ भी व्हेन यू फिनिश द सिलेबस एक बार, तो उसके बाद यू विल बी इन अ जोन. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम. ट्रस्ट द प्रोसेस. गिव योरसेल्फ सम टाइम. या जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनको